welcome you all to yet another interesting and intriguing episode of our special session. We used to do this under Cinema for Screen. Currently, it is Cinematech Media Works. So we are there on the social media platform. A lot of followers are there who regularly watch this particular show, where we try to bring in people who are working in the various domain of media, and they share their experiences. We are also trying to educate people about the various aspects of filmmaking, and we keep bouncing ideas. Today's episode is a bit different because and how I am associated with this show, because I had been a founder member. We have with us Mr. Anshuman Chaudhary, who had been basically the brain behind this entire platform. And we also conduct film festivals, short film and documentary festival every year. We do it in Mumbai primarily, but this year we are planning to go beyond Mumbai. Today's episode is absolutely different, as I said, because as a teacher, I'm very proud that I will be introducing one of my students from 2017 Mumbai University Practical Filmmaking class. I have Elisha Jain with me, and she has her cast and crew for a film that she has made, and it's amazing. Like when she called me and she said that, "Ma'am, I've done this work," I was kind of amazed. I was, I was so excited that okay, this is something I must pass on to my viewers. I must tell people what my student have done. So, Elisha, over to you. If you can please introduce the rest of the cast and crew and to our viewers. Yes. Welcome to the show. Thank you, ma'am. First of all, namaste sabhi ko. It's very, it's an overwhelming moment for me as well that जिनसे मैंने सीखा है आज उनसे सीखकर ही मैं आगे बढ़ रही हूँ. So blessings with all the blessings from the ma'am and sir. So I would like to introduce you to my team. So first of all, किसी भी फिल्म को बनाने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं. So a producer is very important because there are a lot of ideas, roaming around the globe. But then जो आइडिया है उसे कहने के लिए हमें फंड्स लगते हैं. So I would like to introduce you to our कुबेर, धन कुबेर, because जब तक हमें फंड्स नहीं मिलेंगे हम फिल्म हमारा मैसेज कैसे फॉरवर्ड कर पाएंगे. तो इंडिया में जैसे गॉड ऑफ मनी को लक्ष्मी देवी और धन कुबेर से बोलते हैं, तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर धन कुबेर एंड लक्ष्मी देवी, आवर प्रोड्यूसर Mrs. Sadhna Madhavat Jain. So also from Rangshala, she owns a production house, Rangshala Production House, affiliated from Indian Motion Pictures, IMPA, जो हम लोग commonly IMPA के नाम से जानते हैं. And I am mom is she is my mother as well. So I have two mothers here. One is my mother and another one who taught me. So I have two mothers here with me. So it's a very overwhelming moment for me. So I would like to call upon Sadhna Madhavat ma'am and mother to say a few things about herself, and then I'll introduce you all my beautiful and amazing team. So please, Sadhna Madhavat Jain ma'am, please say something about yourself. Okay. पता नहीं, साधना माधवत को तो मैं बहुत कम शब्दों में बता ही नहीं सकती हूँ एक्चुअल में. बट इलाइशा मेरी बेटी है और हम लोग फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, और एक सपना है कि बहुत सकारात्मकता को लेकर इस फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग कदम रखें और ऐसी कहानियों को कहें जिससे लोगों का मनोबल बढ़े आज के समय में, और एक साफ सुथरी फिल्मों का निर्माण हम करें, जो कि हमने अभी किया है तो लोगों को बहुत पसंद आया है.
और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं बहुत सात्विक होते हैं। हम उस माहौल से आए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे साथ यूनिवर्स उन्हीं लोगों को जोड़ते हैं जो हम जिन्हें चाहते हैं, जिन्हें हम पसंद करते हैं। तो ये मेरी प्रे यूनिवर्स से ऑलवेज होती है कि मुझे उन्हीं लोगों से जोड़े। तो देखिए आज हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारे हीरो भी हैं, एंड मैम आपकी तारीफ तो मैं जिन्हीं से इलाइशा से मैं हमेशा सुनती हूँ, और आज मुझे चौधरी सर से भी मुलाकात हुई तो मुझे मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है कि यूनिवर्स ने मुझे एक और डायमंड से आज मिलवाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाकी हम बात करते रहेंगे, और आप मिलिए हमारे तो कितने अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, इन्होंने क्या बात कही है, कम शब्दों में उस फिल्म को तराशा है। और हमारे जो हीरो हैं यहाँ बैठे हैं, आप फिल्म में आपने देखा होगा मैम, कमाल एक्टिंग जहां भी इनकी दिखाई है हमने फिल्म, तो बहुत मजा आया। इलाइशा ने पूरा कोऑर्डिनेट डायरेक्टर सर और उनके साथ मिलकर किया है, मैं बस साथ में हूँ। थैंक यू। सो किसी भी कहानी को कहने के लिए उसका किरदार बहुत जरूरी होता है। मैं पहले किरदार की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब तक आप किरदार से नहीं मिलेंगे आप कहानी को कैसे जानेंगे। तो किसी भी किरदार को पर्दे पर लाने के लिए लोग, क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज है कि लोगों को जो चीज नहीं है उसका भी आभास और एहसास कराना पड़ता है, तो वो एहसास सिर्फ और सिर्फ एक एक्टर से आता है। तो उस चीज को सक्सेसफुली पर्दे पे उतारने के लिए एक एक्टर ये जो माध्यम बनता है थॉट्स और ऑडियंस के बीच का। तो हमारे साथ हमारी फिल्म के एक्टर है प्रियांक कटारिया, वो को प्रोड्यूसर भी है हमारी फिल्म में और लीड एक्टर है। उनका इस फिल्म में रोल था राघव का। तो वो आपको मैं बोलती हूँ सर, आप कुछ अपने बारे में बताइए और आगे हम लोग को फॉरवर्ड करते हैं। नमस्ते सबको। मैंने एक्टिंग की शुरुआत 2009 से की। 2008 के एंड में मैंने और अमित ने दोनों ने एक्टिंग कोर्स किया था डिप्लोमा का बैरी जॉन से। और उसके पहले मैं बेसिकली इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, जो यूएस में था। वहाँ से मैंने एमएस की पढ़ाई की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद वहाँ मैंने जॉब की, और जॉब और ये सब कुछ छोड़ के, अमेरिका छोड़ के मैं मुंबई आ गया एक्टर बनने के लिए 2008 के एंड में। आके मैंने डिप्लोमा का कोर्स किया और 2009 से एक्टिंग की शुरुआत की, थिएटर किया थोड़ा। उसके बाद बहुत सारे कमर्शियल्स किए मैंने, डेली सोप्स, वेब सीरीज, फिल्म्स, मराठी फिल्म। तो ये छोटी एक जर्नी है 15 साल की। उसमें जितने भी मेरा ये था कि एज एन एक्टर जो भी मीडियम मिले, शॉर्ट फिल्म से लेके वेब सीरीज, फिल्म, थिएटर में प्ले, फिल्म्स, कुछ भी हो मुझे करना है। म्यूजिक वीडियो, ये सब कुछ किया है मैंने। तो ये एक जर्नी रही मेरी। और काकुली के राम, ये जो फिल्म है वो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हम सब के लिए। तो ये है। So first of all, I just need to know like Kakoli Ke Ram. So Yes. why? काकोली के राम के पीछे की स्टोरी क्या है वो हमें आप यदि बताएं, या why exactly with that name? So if you can just share. And Priyank ji, आप भी you are also the co-producer. So I'll come to you the next question probably with you. So if you can just Sadhna ma'am and if you can just आप यदि वो बता पाए. If you can just give a brief idea about how it was. So definitely, so first of all, if you feel कि काकोली के राम ही क्यों, तो बेसिकली हमने सुना होगा, बहुत हम लोग जानते हैं कि सीता के राम थे, हनुमान के राम है, तो काकोली क्या है? सो बेसिकली काकोली एक 8 साल की बच्ची है जिसके राम मतलब उसके राम है वो। सो इट्स लाइक काकोली के राम। तो काकोली का अर्थ भी होता है इनोसेंस। तो वो इनोसेंट बच्ची के राम मतलब हर किसी के हमारे राम, हम कैसे अपने राम को देखते हैं। बिकॉज ऐसा कहते भी है कि
जैसे प्रभु श्री राम को जैसे हम भजते हैं वो वैसे ही हमें दिखते हैं। तो ये पूरी जर्नी है काकुली की उसके राम को ढूंढने के लिए। बाकी मैम आप, साधना मैम, प्रियांक सर, आप बताएं इस फिल्म के बारे में तो और अच्छा होगा। प्रियांका आप बोले। हाँ ओके। 8 साल की एक बेटी है जिसके पिता एक बहुत ही गरीब किसान है और उसके सपने बहुत ऊंचे हैं और पिता के सपने भी ऊंचे हैं अपनी बेटी के लिए, लेकिन कैसे पूरे हों? कहीं से ईश्वर कोई मदद भेजता है और वो आगे बढ़ते हैं अपनी उस सपनों को ऊंचा करने की जर्नी में। तो उसमें वो जो बेटी है, जो रामलीला का हमने उसमें एक प्रसंग लिया है, उसके माध्यम से हमने उनकी जर्नी को कहा है। वो अपने पिता में राम देखती है। जब वो राम का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो राम को देखती है अपने पिता में। और इस फिल्म के माध्यम से हमने बच्चों के लिए एक बात और की है कि हम खेल खेल में या नाटकों के या फिल्मों के माध्यम से हमारे बच्चों को कैसे बताएं, इन महापुराण की गाथाओं को कैसे समझाएं। तो हम ये हमारे बच्चों को, वो बार बार उसके मन में क्यूरियोसिटी आती है रोज रिहर्सल में कि आज बाली ने इसको क्यों मारा, आज ऐसा क्यों हुआ। और उसके रिहर्सल से लौटते समय वो साइकिल पे बाप बेटी, जो पिताजी जो उसकी क्यूरियोसिटी को बताते हैं कि ऐसा करना जरूरी था, ऐसा हुआ। तो खेल खेल में वो राम को कैसे उस बेटी के मानस में उतारते हैं कि राम क्या है, राम की ऊर्जा क्या है। मतलब कहने का ये बच्ची को होता है कि जिसके अंदर राम प्रवेश कर गए उसके अंदर से रावण बाहर हो गए इन द एंड। तो हाँ, तो ये एक बच्ची का जो मोटिव हमने उसमें दिखाया है और वो उनकी जो स्ट्रगल है लाइफ का, बाप बेटी का बॉन्डिंग, वो बहुत कमाल है और मतलब बहुत पसंद ही आती है हमें भी। हम तो जब भी देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। एज मैम साधना मैम, आपने जैसा बोला, मेरे ख्याल से स्टोरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। जब अमित सर ज्वाइन करेंगे एज अ डायरेक्टर राइटर, आई थिंक वी कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू हिम। मीनवाइल प्रियांक सर, आप ये बताएं, इंजीनियरिंग से काकोली के राम तक का जो जर्नी है कैसा रहा और आपको कैसे ये अपॉर्चुनिटी मिली, वो भी उसके बारे में हमें कुछ बताएं। श्योर, प्लीज मुझे प्रियांक सर मत कीजिए, कहिए। नो प्रॉब्लम, ये इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। आई नो प्रियांक से बोलोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और थैंक यू। हाँ, तो बेसिकली मैं, जैसे मैंने कहा, मैं इंजीनियर हूँ एक्चुअली, बस इंजीनियरिंग की जॉब नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो मैं यूएस में जब इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था तो मेरे साथ जो मेरे कलीग्स थे वो लगभग 50 ईयर्स, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स और बहुत सीनियर मेरे कलीग्स थे। तो 2 साल के बाद जब मैंने काम किया तो मैंने जब उनको देखा तो मुझे लगा यार, मैं उस वक्त 25 साल का था। मैंने बोला यार 55 साल, मतलब आगे के 20 साल बाद अगर मैं देखूं तो मैं भी इनकी तरह जॉब करता रहूंगा, तो जो अंदर से जो मेरी जो क्रिएटिविटी है, जो मुझे कुछ करना है अपने लिए, वो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। तो उस वक्त मुझे कॉल लेना था, क्या इंजीनियर जिसमें बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है, यूएस में जॉब होती है, न्यूयॉर्क में पैसे अच्छे मिलते हैं, पैकेज अच्छा होता है, वो करना है, या थोड़ा ऑफ जाके एक खुद के लिए एक जो करने की इच्छा है वो करे। तो उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि यार नहीं यार, करना है तो एक बार खुद की सुनते हैं, करके देखते हैं, नहीं तो फिर इंजीनियरिंग में वापस आ जाएंगे। मैंने फैमिली के साथ डिस्कस किया और मैंने बताया कि मैं छोड़ना चाहता हूँ और एक्टर बनना चाहता हूँ और मुंबई में आके मैं ये सब शुरू करना चाहता हूँ। तो पूरी फैमिली ने तुरंत बोला कि यार तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो। तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला और मुझे लगा कि हाँ यार, ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना है मैं कर सकता हूँ, इतना फ्रीडम मुझे है, तो व्हाई नॉट। तो वो मैंने डिसाइड किया और मैं सब कुछ छोड़ के फाइनली 2009 में मुंबई आया। 2008 एंड, और वहां से मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया था एक्टिंग कोर्स का बैरी जॉन से, क्योंकि मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो एक्टिंग कोर्स मैंने किया, तो वहां से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। 3 मंथ्स का कोर्स था वो, क्या मैं ये कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस आने के बाद मैंने रेजिग्नेशन इंडिया से भेजा था उनको, कंपनी को, कि मैं तो वापस नहीं आ रहा हूँ। और मैंने उनको बताया नहीं था कि मैं एक्टर बनने यहाँ पर आया हूँ, कि थोड़ा ऑड फील होता है उनको।
पर मुझे कभी ना तो बताना ही था उनको। तो फाइनली उनको मैंने बता दिया कि यार मैं अब नहीं आऊंगा। तो बस वहां से शुरू किया मैंने। फिर ये था कि जो मिले, क्योंकि एज एन एक्टर आप शुरू करते हो तो कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है, आपको सीखना होता है। तो पहले एक प्ले की अपॉर्चुनिटी मिली, फिर हमने वो किया। मैं और अमित और दूसरा एक फ्रेंड थे, हम लोग घर पे प्रैक्टिस करते थे तो वो भी की, सीन वर्क करते थे वो भी किया। फिर एड्स मिलना शुरू हुए, आरम नगर, श्रीजी, अलग अलग जगह पे जहाँ ऑडिशंस होते थे वहाँ धीरे धीरे पता चलना लगा। तो वहाँ जाके हम ऑडिशन देने लगे, धीरे धीरे एड्स मिलने लगे, काम मिलता गया। फिर हम देखने लगे कि हाँ यार ये थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए। तो वो जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई और करते करते अलग अलग मोड जो है वहाँ अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते गए, वो करते गए। फाइनली लगभग 12 साल हो गए थे मुझे। और मैंने अमित ने डिस्कस किया कि यार ये सब तो हमने किया, कर भी रहे, लेकिन कुछ बड़ा करने के लिए हमको कुछ खुद का करना पड़ेगा। तो कोई स्टोरी है क्या? तो अमित ने बोला हाँ मेरे पास एक स्टोरी है, मैं सुनाता हूँ, तू बता कैसी है। उसने पूरी स्टोरी बताई मुझे और मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि नहीं यार कुछ करना है तो इसी वक्त करना है और इस पे ही करना है। और फीचर फिल्म, डायरेक्ट फीचर फिल्म, कुछ छोटा नहीं, पहले शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, कुछ वो करेंगे, नहीं सीधा बड़ा जंप करेंगे। मेहनत लगेगी, बहुत हार्डवर्क होगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, सब करेंगे, लेकिन अपना होगा वो जो करने से इतनी अच्छी स्टोरी है वो हम बता पाएंगे। तो वहां से हमने शुरू की। और ये कैरेक्टर जब उसने मुझे बताया, स्टोरी एक्सप्लेन की, तो मतलब मैं तो अभी थे मेरे गूसबम्प आ गए मुझे। इतना टच किया था ये कैरेक्टर मुझे, मैंने बोला किसी भी हाल में और इसको कितना भी टाइम लगे इस स्टोरी को करना है। तो वहां पर ये काकोली के राम, उस वक्त काकोली के राम नहीं थी, उस टाइम पे वर्किंग टाइटल मुझे याद भी नहीं क्या था, फार्मर स्टोरी। अमित, हाँ राघव काकोली कुछ हमने टेंटेटिव नाम रखा। हाँ ऐसा कुछ तो था, बट मैंने बोला जो भी है अभी तो करो इसको, जो करना है सब कुछ करना है। तो वहां से ये शुरू किया था और इतना क्लोज था ये, मतलब अभी भी है ये कैरेक्टर में। तो वैसे ये काकुली के राम की ये जर्नी मेरे लिए फाइनली हमने किया। हाँ, वेरी नाइस। सो अमित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप थे नहीं, मैं इसलिए आपसे पूछ नहीं पाया। अमित जी, आप ये कॉन्सेप्ट से लेके डायरेक्शन तक उसकी जर्नी, एंड सबसे इम्पोर्टेंट है साधना जी कहाँ पे आपको मिली? देखिए एक डायरेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक वही रहता है कि who will produce, right? So that's something which you need to answer. That's true. So थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड बता देता हूँ कि मैं एक्चुअली दिल्ली से हूँ और दिल्ली में मैंने 5 साल शुरुआत की थी रेडियो जॉकी से। आई वाज रेडियो जॉकी। और उसके बाद मैंने फिर थिएटर किया दिल्ली में, अस्मिता करने के बाद फिर मैं बॉम्बे आया। बॉम्बे आने के बाद फिर मैंने बैरी जॉन का कोर्स किया, प्रियंक वहीं मिला मुझे। तो हम लोग एक साथ ऑडिशन देने आते थे और हम लोग काम करते थे। काम करते हमने एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज किया यार हम लोग ना दूसरे की कई बातों का हिस्सा है। वो जो सोचते हैं, वो जो कहानी लिखते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, हम उसका पार्ट है। हम अपनी बात कब कहेंगे लोगों को? लेकिन ऐसा मौका मिलता नहीं था क्योंकि बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए यू हैव टू अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए आपको काम करते रहना पड़ेगा। और जब आप काम करते रहते हो तो फिर आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। ये तो हुआ ऐसा कि एक शूट के टाइम पे एक स्टंट करते हुए मेरे यहाँ सर पे हथौड़ा लग गया और मैं कुछ 4 महीने घर पे बैठ गया। तो एक स्क्रिप्ट जो हमने शूट की थी, मैंने जो सोचा शूट किया था, उस पर मैंने फिर लिखना शुरू कर दिया और वो कंप्लीट कर लिया उस टाइम पे। तो जो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया था वो तो एक सिंपल सी लाइन थी, लेकिन उसको सोचते जैसे जैसे मैं सोचता गया करता गया तो वो शॉर्ट फिल्म बनी। मैंने वो शॉर्ट फिल्म प्रियंका को सुनाई और दोस्तों को सुनाई। सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि इसके अंदर और पोटेंशियल है, और डिटेल में जाओ इसके अंदर, इसको हम और लंबा खींच सकते हैं, चीजों को जा सकते हैं। तो मैंने फिर इसमें और सोचना शुरू किया और मैं जैसे जैसे सोचता गया मेरे को और रास्ता मिलता चला गया। जैसे धुंध में होता है ना, आप 2 कदम दिखता है, फिर आप 2 कदम चलते तो अगले 2 कदम दिखते हैं। तो स्टोरी के अंदर मैं फिर घुसता चला गया, किरदार के अंदर घुसता चला गया। मुझे एक एक किरदार दिखने लग गया। और पौने 2 घंटे की मैं जब फिल्म लिख बैठा था तो सवाल अब ये उठता था कि अब बनाएगा कौन, पैसे कौन लगाएगा, हमारे पास चीजें कहाँ से आएंगी, कैमरामैन कौन होगा, कैमरा कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा। हमारे पास एक स्टोरी और भी थी, वो थी हमारी लव स्टोरी थी। हम ट्रायंगल प्ले करने वाले थे, पर हमें लगा यार उसका एक सीन भी करने जाएंगे ना तो
तो अच्छा खासा बजट आ जाएगा उसके अंदर, यू हैव टू बी वेरी पॉलिश्ड। और ये जो स्टोरी थी, ये स्टोरी में कहने के लिए हमारे पास बहुत कुछ था, और बजट के नाम पर हम इसको लगता था कि हम इसको शायद कर सकते हैं। अगर हम उसको कर भी सकते हैं तो भी उसका पैसे इन्वॉल्वमेंट इतना है कि हम इंडिविजुअली शायद हम उसको रीच आउट नहीं कर पाते। ऐसे में प्रियंक ने मुझे बोला कि भाई हमारी मासी हैं, वो काफी थिएटर में इन्वॉल्व हैं और काफी सेक्रेटरी में इन्वॉल्व है, वो फिल्म बनाना चाह रही हैं, तो तू आजा शाम को, वो आए हुए हैं, उनको सुना कहानी। और मैं कहानी इनको सुनाना है, और मैं बड़ा अजीब तरह से सुनाता हूँ, मतलब मैं पूरा नाच नाच के, डांस कर करके, एक्टिंग कर करके, महमूद की तरह, जैसे महमूद ओम प्रकाश को सुनाया करता था, वैसे मैं म्यूजिक भी मुंह से बजा बजा के, डायलॉग भी बोल बोल के। तो ये मासी मेरे को दो तक देखती रही, यार ये कैसा आदमी है, कूद कूद के एक्टिंग करके दिखा के स्टोरी सुना रहा है। बट इनको पसंद आई वो, उन्होंने बोला हम लोग कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि जब हम फ्लोर पे जाते हैं तो फ्लोर पे बहुत दिक्कतें आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारे पास जितने मेरे एक्टर्स दोस्त थे जो वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, एड्स में काम कर रहे हैं, स्टार प्लस में काम कर रहे हैं, अच्छे चैनल्स में काम कर रहे हैं, वो लोग हमारे लिए आ जाएंगे फ्री में। लेकिन वो जो है बहुत लंबे समय तक उनको होल्ड करना पड़ा मुझे। वो यारी दोस्ती में थोड़े समय के लिए आ जाएंगे, या उनको एक नॉमिनल अमाउंट हम देके कुछ टाइम तक होल्ड कर लेंगे, बट वी कांट होल्ड देम फॉर वेरी लॉन्ग। और वो भी इंदौर के पास एक गांव के अंदर। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमको फिल्म को कुछ दिन के अंदर खत्म करना। तो फिल्म 12 दिन हमने प्लान किए थे, जिनमें से एक दिन तो हमारा ऐसे ही वेस्ट हो गया। हमारे हीरो का हाथ टूट गया था और हम लोग उसे शूट ही नहीं कर पाए। तो 11 दिन के अंदर पूरी फिल्म खत्म करनी है, जिसके अंदर लोकेशन भी बहुत सारी है, जिसमें मैं भी पूरी टीम को रोज मॉर्निंग में कहता था कि एवरीडे एक कोई नई प्रॉब्लम आने वाली है, और वो हमें से किसी को नहीं पता क्या प्रॉब्लम आनी है, पर प्रॉब्लम आएगी जरूर। और हर दिन एक प्रॉब्लम आती थी और उसको हम हैंडल करके कैसे भी शूट करते थे। तो 11 दिन के अंदर ये फिल्म को कंप्लीट करना, कि यहाँ पर भाग के वहां पर वो सब करना, ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं क्या बनाने वाले हैं। हमारा जो डीओपी था वो भी कह रहा था, जब फिल्म बन गई तो उसे बोला कि अभी सर ये सारा मैंने ही शूट किया है, पर मुझे नहीं पता था कि आप कुछ ऐसे डायरेक्शन में लेके जा रहे हो इसे। प्रियंक भी मुझे कह रहा था कि आप मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा था कि तू कुछ शूट कर रहा है ऐसा कुछ, लेकिन एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानता था क्या कर रहा है। सिर्फ जीनी जो है या मैं इलेशा जो है वो उसको पता था कि अभी यहाँ पर क्या करने वाला आने वाला। बाकी मोस्टली किसी को ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि बताने बैठने का प्री प्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो नहीं था हमारे पास, और लोगों को समझाने का टाइम भी नहीं था, स्टोरी बोर्ड का भी टाइम नहीं था। तो हमने जैसे तैसे करके वहां पर चीजें मैनेज की, और 11 दिन में फिल्म बनके जब रेडी हुई, फिर उसको जब हमने एडिट किया और फिर जब लोगों को दिखाना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यार शायद हमने पता नहीं कैसी फिल्म सेलेक्ट कर ली है। आजकल तो कमर्शियल फिल्में चलती हैं, सॉरी टू से, बट आजकल उल्लू ऐप ज्यादा चलता है, और बाकी इस तरह की चीजें मैं शायद 2 बीघा जमीन टाइप की फिल्म में 40 साल पुरानी फिल्म में अभी लेकर आ गया हूँ। पर मुझे देखने वाला लोगों ने बोला कि यार कोई भी फिल्म का ऑडियंस होता है, हर चीज की ऑडियंस होती है, आप फिल्म दिखानी शुरू कर। तो जब जैसे हमने फिल्म दिखानी शुरू की, लोगों ने जब पूरी फिल्म देखी तो उन्होंने फिल्म की जब काफी तारीफ करनी शुरू की, तो मुझे लगा नहीं, वो मैं गलत जमाने में 40 साल पुरानी फिल्म नहीं लेकर आया, मैं सही फिल्म लेकर आया हूँ। और हमारी फिल्म का जो मेन उद्देश्य था वो भी यही था कि अगर फिल्म का अगर मैं उद्देश्य बोलना चाहूँ तो फिल्म का उद्देश्य हमारा यही था कि जो लोग किसी भी स्फीयर में होते हैं, चाहे वो किसी प्रोफेशन में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, डिप्रेशन आता है, लाइफ है तो डिप्रेशन आएगा ही। 9 ग्रह घूम रहे हैं तो वो डिप्रेशन देंगे। तो जब आपको डिप्रेशन आता है और इतनी ज्यादा डिप्रेशन हो जाती है, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है, आप सोचते हो कि यार शायद अब कुछ नहीं है आगे, और आप एक दिन जब आप सोच लेते हो कि शायद कुछ भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, इतने दिन से हाथ जोड़ना उसने भी कुछ नहीं किया, तो शायद अब ये जिंदगी खत्म करने का समय, अब मैं इसको नहीं हैंडल कर सकता, वो खुद भगवान समझ के अपने आप को जब खत्म करता है। मेरी फिल्म ये कहती है कि यार उस दिन अगर तू छोड़ दे, एक दिन और छोड़ दे, तो क्या पता अगले दिन भगवान मदद भेज ही रहा है। तो अगले दिन अगर आप एक दिन और रुक जाए, तो हो सकता है आपको हेल्प मिल रही है, ऑन द वे है, आपने जल्दबाजी कर ली। तो दिस इज द बेसिक थिंग कि जब तक आखिरी सांसें हैं ना, तब तक इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर सांस ऊपर वाला ने दी है तो लेने का हक भी उसी को लेने दो, आप अपने आप से मत करो। तो ये फिल्म का जो हमारा मोटिव था, और ये हर स्फेयर में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी फेज में, किसी भी उम्र में, कहीं पे भी ये एवरग्रीन मैसेज है। तो हमें ये लगा कि ये कम बजट के अंदर हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकते हैं। और आपको जैसे बताया कि 11 दिन के अंदर हमने फिल्म कंप्लीट की, तो 11 दिन के अंदर आप फिल्म कंप्लीट करने जाओगे, तो मैं एक पॉइंट पे मुझे लगा था कि शायद मैं फिल्म कंप्लीट कर भी नहीं पाऊंगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगी और ये बहुत सारी फिल्मों की तरह डब्बे बन के रह जाएगी। मुझे वो डर सता रहा था। फिर मैंने उस दिन डिसाइड किया, इलेक्शन के साथ मैंने शेयर भी किया, मैंने ठीक है, मैं अगर वैसी फिल्म नहीं बना पा रहा जैसा मैं चाह रहा हूँ, तो एटलीस्ट मैं अपनी कहानी कन्वे कर दूं,
अगर मेरी कहानी लोगों तक कन्वे होती है और मेरा मैसेज लोगों तक स्ट्रांगली पहुंचता है तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। सबसे पहले जब हमने उसको सेंसर करवाने गए थे, मैं तब तक कंफ्यूज था कि शायद मैंने अगेन सॉरी टू से उल्लू के टाइम पे मैंने क्या फिल्म बना डाली, लोग देखेंगे भी नहीं इसको, ना हीरोइन है, ना आइटम सॉन्ग है, ना रोमांस है, ना ही कुछ है इसके अंदर बिकने वाला, ना शाहरुख खान है इसके अंदर। तो जब हम गए वहां पर फिल्म दिखाने सेंसर वालों को, तो सेंसर वाले जब फिल्म देखकर आ रहे थे तो पहली बार मैं बाहर बैठ के जी वो कोई सब छोटा पॉइंट था, लेकिन राम जी बहुत सारी फिल्मों में होती है। हमारी जो फिल्म है धीरे धीरे ड्रग एडिक्ट की तरह हमने मैसेज डालने की कोशिश की। तो बाय सरप्राइज वो जो पूरा पैनल जब आ रहा है और उन्होंने मुझे जब बोला कि हमें ये आपने बनाई है फिल्म में, कहा तो कहता कि ये फिल्म सोचने पे मजबूर करती है एंड दिस काइंड ऑफ फिल्म शुड बी डन, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। आपने कहाँ शूट की? मैंने कहा मैंने मध्य प्रदेश शूट की। तो उनमें से एक मध्य प्रदेश का था, कहते मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे एरिया में इतना अच्छा काम हो रहा है। दैट वाज द फर्स्ट डे मुझे लगा नहीं यार मैंने एक ढंग की फिल्म बनाई है यार। लोगों तक अगर मेरा मैसेज पहुंच रहा है और लोग अगर उस मैसेज के अक्रॉस आ रहे हैं और उन तक असर पड़ रहा है तो शायद मैंने सही बात बोली है, बस इसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और उसी कोशिश में हम लोग अभी भी लगे हुए कि ये लोगों तक पहुंचे। तो दिस वाज ऑल जर्नी। सो प्रियांक जी, मेरे ख्याल से दिस इज एज यू सेड, अमित जी की ये पहली फिल्म थी और साधना जी आप भी जब एज अ प्रोड्यूसर आप कहते हैं नॉर्मली इंडस्ट्री में ये हम देखते हैं कि पीपल आर वेरी स्केप्टिक वर्किंग विद द फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स एंड ऑल। सो आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस अमित जी पे कहाँ से आए, साधना जी एंड प्रियांक जी? उन्होंने जब कहानी सुनाई और कहा, चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं सकारात्मक ऊर्जा पर ही काम करती हूँ, तो फिल्म इंडस्ट्री में इन चीजों का अभाव काफी समय से है। और जब मैंने फिल्म सुनी तो मुझे बहुत टच किया उसने, और जो चीज हार्ट को टच करती मतलब वो परफेक्ट है। और जिन्होंने सुनाई है उन्होंने पूरे मूड से सुनाई कहानी हमें। वो कहानी जब मैं और मेरे मतलब इलाइशा के जो पापा हम लोग जब सुन रहे थे, हमें उस कहानी ने बहुत टच किया। तो हमें लगा कि ये अमित भाई जिस तरह से इस कहानी का नरेशन कर रहे हैं, मतलब कुछ बात इस फिल्म में बनेगी, फिल्म बहुत अच्छे से बन के सामने आएगी। और कहानी हमें बहुत पसंद आई। और चूंकि रामलीला हमारे तो मध्य प्रदेश में राम बहुत महत्व रखते हैं, रामलीलाएं बहुत महत्व रखती है। जब राम से इस नेगेटिविटी को जोड़ा और उसको पॉजिटिव विचारों में लाए राम के माध्यम से, तो हमने सोचा ये फिल्म तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो बस वहीं से हमने जब उनका नरेशन सुना, तो जब मतलब चूंकि अमित भाई एक्टर भी हैं, तो जब वो सुना रहे थे तो वो एक्ट कर रहे थे, एक्चुअल में सुना नहीं रहे थे। वो राम भी उनमें दिख रहे थे, राघव भी दिख रहा था और रावण भी दिख रहा था जब वो सुना रहे थे। तो हमें तो बहुत मतलब सुन के इतना अच्छा लगा। तो और फिर प्रियांक वो राम के अवतार में, तो हमें तो बहुत परफेक्ट लगे। जब अमित भाई ने बोला प्रियांक को राम का रोल अपन करेंगे, तो जब राम के रोल में प्रियांक ने जब राम वाला ड्रेस पहना तो कमाल। देखिए हम मेरे साथ कॉन्सिडेंट हुआ इस फिल्म में, क्योंकि हम जब बहुत पॉजिटिविटी से काम करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ होता है। ये लोग सब जानते हैं मेरे साथ जो भी काम करते हैं। तो एक दिन शूट चल रहा था, इनका शूट दूसरा था, वो गांव में साइकिल पे वो काकोली को लेके स्कूल छोड़ने जा रहे, और मैं और मेरी सिस्टर चाय लेके आ रहे थे सबके लिए। हमने खुद काम किया, हमने खुद अपने हाथ से सब हमारे क्रू को खिलाया पिलाया। तो जब चाय लेके हम लोग गाड़ी में बैठ के आ रहे थे, तो मैंने कहा रुक जाओ भाई रुक जाओ, वहां सामने ना शूट चल रहा है। और प्रियांक को राम की ऑरेंज अधोवस्त्र और उत्तरी और धोती में थे राम। तो मैंने कहा वो ऊपर से वो पहाड़ी पे से उतर के आ रहे हैं और शूट चल रहा है, हमारे कैमरा सिनेमेटोग्राफर शूट कर रहे हैं। तो हमने गाड़ी दूर ही रोक दी। मैंने देखा, मेरी सिस्टर ने भी देखा, हम थोड़ी देर खड़े रहे, फिर शूट और हुआ, उन लोग कट और हमने गाड़ी लेके क्रू तक गए हम। तो जब हमने कहा भाई चलो चाय पी लो, ये बात तो हमारे बीच में बहुत दिनों बाद खुली कि ऐसा तो कोई शूट किया ही नहीं था। मतलब उन्होंने वो तो शूट जिस समय हम वो चाय और नाश्ता लेके आए, उस समय शूट ही वो साइकिल पे कुर्ते पजामे में चल रहा था, और वो स्कूल में राम को गुड़िया को छोड़ने जा रहे थे, काकोली को। तो हमने कहा कि मैं देखती तो चलो मेरा भ्रम था, लेकिन साथ में मेरी सिस्टर ने भी उस राम को देखा, राम के वस्त्र में उतरते हुए, और शूट चल रहा है, हमने पूरा डेकोरम देखा। तो ये तो एक मिरेकल था, मिरेकल है। वो कैसे था ये हमें, मैं अकेले देखती तो बात मानते, पर सिस्टर ने भी सेम बात देखी और हम रुके, और वो शूट था ही नहीं एक्चुअल में। तो ये पता नहीं, ये इस का मिरेकल था एक तो। और बहुत अच्छे से मतलब
एक्चुअली मैं तो संगीत नाटक एकेडमी, भारत भवन, कालिदास एकेडमी, इन सबकी मेंबर भी हूँ। और मैंने थिएटर की पढ़ाई की है लॉ के साथ साथ। तो और मैंने सिविल जज की एग्जाम पास की है, लेकिन मैंने चुना सांस्कृतिक फील्ड को। तो मैंने सिविल जज में मैंने सिलेक्शन में मेरा हो गया था, जॉब ज्वाइन करना था, मैं गई नहीं। मैंने बोला अगर मेरे पापा डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला जो तुम्हारी चॉइस हो, जैसे प्रियांक ने बोला कि पापा ने बोला जो चॉइस हो। तो मैंने बोला मुझे पापा जी ऐसा लगता है कि मुझे सांस्कृतिक फील्ड में जाना है, मुझे बहुत पसंद है। तो क्या होता है कि अगर मैं वकील बनी या बाद में मैं जज बनी तो मैं शायद इतने ही लोगों के कॉम्बिनेशन में पूरी जीवन जी के चली जाऊंगी, वही मेरे क्रिमिनल्स और इन सब के बीच में। लेकिन अगर मैं सांस्कृतिक प्रतिभा बनी, सांस्कृतिक जो प्रतिभा होती है उसका पूरा वर्ल्ड ओपन होता है और वो पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन होती है। तो मेरा ये सपना था कि मैं पूरे वर्ल्ड के लिए काम करूं, और सांस्कृतिक हमारे खून में रचा बसा है, हमारे जीन्स में। तो हमने फिर वो फील्ड चुना, और आज ये पहली फिल्म थी, को प्रोड्यूसर थी मैं उसमें, वीर वोमटेश, और ये फिल्म हमने एज ए प्रोड्यूसर प्रोड्यूस की। तो जब तक इलाइशा बड़ी हो गई और इसने जो मुंबई यूनिवर्सिटी ने इसको जो ट्रेनिंग दी है, कमाल की ट्रेनिंग दी है, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी को भी हेड्स ऑफ करती हूँ कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज इलाइशा को दिया है। और कोरोना में जो अमित भाई ने और इलाइशा ने यहाँ इंदौर में घर में हमने मशीन बुलाई, क्योंकि ये अटक गए यहाँ पे कोरोना में, और यहाँ एडिट किया फिल्म को अपने उस ज्ञान से जो इसने मुंबई यूनिवर्सिटी में हासिल किया था। क्योंकि हम मुंबई नहीं जा सकती थी उस समय कोरोना काल में, तो फिल्म लेके बैठ नहीं सकते थे, क्या करें। सर आए कि मैं इसको आइडिया देता हूँ, अमित भाई आए वहां से दिल्ली से, और बॉम्बे निकल जाऊंगा। ये आए और लॉकडाउन लग गया 2 दिन बाद, तो अमित भाई भी 3 महीने इंदौर में अटक गए। अब अटक गए तो क्या कर सकते हैं। तो फिर फिल्म इसके पापा ने एक मशीन पूरी हायर की एडिटिंग के लिए, और ऊपर हमारा एडिटिंग रूम है यहाँ पे, तो उसमें मशीन रख के इलाइशा ने और भाई अमित भाई ने बोला चलो हम कोशिश करते हैं। इलाइशा को ने पढ़ा है और अमित भाई का डायरेक्टर साथ में है, तो इन्होंने कोशिश की, और फिर इन्होंने पूरी फिल्म उस कोरोना में एडिट कर ली, परफेक्ट एडिट की। तो फिर समय बच गया थोड़ा, और कोरोना वो लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा था। तो अमित भाई बोले इलाइशा तुमने तो डीआई भी पढ़ा है, तुमको आता तो है, कोशिश करो थोड़ी। तो ये लोग डीआई करने बैठे, मैंने इन्हें बहुत काढ़ा पिलाया मई के महीने में 4-4 बार, बताइए उस वक्त में, और इन्होंने डीआई भी किया उस फिल्म का। और जब हम मुंबई में जब कोरोना का ओवर हुआ और जब मुंबई गए फिल्म लेके मास्क वास्क लगा के, तो जिस स्टूडियो में हमने डीआई वगैरह किया, तो वो इसका इलाइशा को बोल रहे थे कि तुम कमाल का डीआई कर लेती हो, जबकि इसने अपने उसी ज्ञान से किया था जो आपके यूनिवर्सिटी में इसने पढ़ा। तो मैं तो सही में बहुत फैन हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी की, मैं बोलती हूँ वहां पे बराबर पढ़ाई होती है हर चीज की, परफेक्ट क्यों इलाइशा। तो ये फिल्म बहुत सारे सोपानों से होके गुजरी है। और भैया ने बताया, अमित भाई ने, कि हम जब जूरी मेंबर्स, जब 5 ही 6 जूरी मेंबर्स आए सेंसर बोर्ड से बाहर, तो तुषार सर थे उस वक्त, तो वो यही बोले कि किसने बनाई, किसने डायरेक्ट की, हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है। बोले हम बहुत सालों बाद हमने कोई इतनी सकारात्मक फिल्म देखी है, और हम 5 जज अलग अलग कुर्सी पे बैठे थे पूरे हॉल में वहां फिल्म विकास निगम में। तो बोले लेकिन हमारी आंखें पूरे समय ऐसे थी, ऐसा लग रहा था हम पलक झपकेंगे तो कुछ छूट जाएगा। तो कमाल मूवी बनाई है बोले आपने, और कितने बजट की है। हमारा बजट तो फिर बात की उन्होंने, पर उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचवाया सर। मतलब हमारे लिए वो पल बहुत गौरव का था कि हम लोगों के साथ हमारे वो जो सेंसर बोर्ड की जूरी थी उन्होंने फोटो खिंचवाए, मेरे पास आज भी मेमोरी में है। और उन्होंने बोला इसको सारे फिल्म फेस्टिवल्स में भेजो, एक नंबर मूवी है आपकी, और इसको रिलीज करो, हमारी जो भी हेल्प लगेगी हम करेंगे। तो जब वो लोग चले गए ना, तो वहां जो वर्कर्स थे तो वो हमारे पास आए, बोले क्या पिक्चर बनाई यार तुम लोगों ने। मतलब हमारे ये जो तुषार सर और जूरी मेंबर्स, कभी भी हमारे जूरीज होती है ना, वो फिल्म देखती है और हॉल में से सीधी चली जाती है बाहर, बिना नजर मिलाए प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, कभी भी। आज हमने भी पहली बार देखा है कि जूरी मेंबर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करके उनके साथ फोटो खिंचा के गए हैं। मतलब कुछ तो कमाल बनाया है आपने। तो मतलब वो पल है ना, मैंने लिखे हैं सारे मेरी मेमोरी में कि क्या बात है। तो बस ऐसी कहानी है, दिल को छू जाती है, और क्या। ऐसा सर। प्रियांक जी आपका। हाँ, यस। तो मैं बेसिकली, मैंने बोला ना अमित को, मैं 2008 के एंड एक्टिंग कोर्स में मिला था। तो 2000 मतलब लॉकडाउन के पास हमने फिल्म बनाई थी, और उसके जस्ट पहले
तो ये जो 11-12 साल का जो हमारा साथ था, तो मैं उसको पूरी तरह अच्छे से जानता था, क्योंकि इतना सीरियस है वो काम को लेके, एक्टिंग को लेके। बीच में उसने 2-3 शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई थी जिसमें मैं भी था उसमें। तो मैंने ये देखा था कि वो जो भी शॉर्ट फिल्म बनाता है और वो मुझे एक्सप्लेन करता था हर स्टोरी, और वो जब बनाता था डायरेक्शन में और जब एडिटिंग होके आती थी फिल्म, तो वैसी होती थी जैसे वो एक्सप्लेन करता था, क्योंकि वो एक्टिंग करके एक्सप्लेन करता है। उसकी ये बहुत यूनिक हैबिट है। तो वो जो एक्सप्लेन करता है वैसा हमको भी दिखने लगता है, हाँ यार ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो शॉर्ट फिल्म जब बन के आती तो हाँ वैसी आई। मैंने बोला ये तो जैसा एक्सप्लेन करता है वैसा आता है। और जब इसने ये स्टोरी बताई, तो जब आपका विजन इतना अच्छा होता है ना, तभी आप उतना एक्टिंग कर करके इतना इंटरेस्ट के साथ आप एक्सप्लेन करते हो कि आपको भी वो कैरेक्टर्स यहाँ दिखते हैं कि हाँ राघव ऐसा कर रहा होगा, काकुली ऐसे करती होगी, वो ऐसे करता होगा। तो मुझे तो पहले एक्सपीरियंस था शॉर्ट फिल्म में, इसने फीचर फिल्म में सेम मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे पूरा विजन मिला। तो हम दोनों को कई बार ऐसे रोंगटे खड़े हो गए बीच बीच में, जब वो इमोशनल सीन्स आते थे, काकोली और राघव के फादर और डॉटर के जब सीन्स आते थे, तो इतने इमोशनल सीन, इतने बॉन्डिंग वाले सीन। मैंने बोला यार ये पूरी फिल्म मुझे तो अभी से ही दिख गई है। तो मुझे तो पूरा ट्रस्ट था कि हाँ भाई ये जो लिखा है और जो उसने सोचा है वो डेफिनेटली आएगा। सबसे डिफिकल्ट था कि साधना जी को ये ट्रस्ट होना, क्योंकि मैं तो उसको 11 साल से जानता था। साधना जी मुझे जानती थी लेकिन अमित को नहीं जानती थी। तो एक नए डायरेक्टर राइटर को मिलना, उसका विजन को देखना, समझना और उसको हाँ बोलना बाद में, उनके लिए बड़ा चैलेंज था। मेरे लिए उतना चैलेंज नहीं था, क्योंकि मैं तो उसको जानता था, उसका विजन जानता था, उसका जो एक्सप्लेन किया तो मुझे पता था कि हाँ ये क्या बना रहा है। तो मेरे लिए उतना डिफिकल्ट नहीं था। साधना जी के लिए बहुत डिफिकल्ट था। बट जैसे उन्होंने बोला कि वो कनेक्ट हो गया, स्टोरी कनेक्ट हुई और उसने एक्सप्लेन किया, वो सब उनको भी दिखा, पॉजिटिव एनर्जी थी। तो फाइनली उन्होंने भी फिर बोला कि हाँ यार इसको बनाता है। तो इन सबकी एनर्जी के साथ फिर हमने ये सब कूद पड़े कुएं में। सो बेसिकली हम जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि एक डायरेक्टर को एक अच्छा एक्टर होना चाहिए। मेरे ख्याल से अमित जी को वो बहुत फायदा हुआ है। बहुत। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, हमको एक्सप्लेन करने में नहीं, जब वो डायरेक्शन कर रहा था तो सेट पे तो बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारा क्रू था, वो चाहे टेक्निकल हो या एक्टर्स हो, सबको एक्सप्लेन करना है उसको। टेक्निकल लोगों को अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है, एक्टर को अलग तरीके से। तो हर तरह का कैरेक्टर उसने करके दिखाया है उधर। टेक्निकल लोगों को ऐसे करना है और एक्टर को ऐसे करना है। तो डेफिनेटली हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। और सबको बहुत हेल्प हुआ और सबको विजन क्लियर कट दिख रहा था। वेरी ट्रू। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मासी ने देखा कि जब ये कूद के स्टोरी सुना रहा है तो ये फिल्म तो उछल के बनाएगा। पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात यह कि आई एम नॉट अ डायरेक्टर, हम डायरेक्टर नहीं है, हम फ्रेंड्स लोग थे सारे और हम लोग कुछ बनाना चाहते थे। और ये गरीब किसान की कहानी थी। अब गरीब किसान मुझे लगा था मैं लगूंगा नहीं और ये लग जाएगा, प्रियंक लग जाएगा, मेरे को ये श्योर था। तो हम लोग को ये था कि तू एक काम कर, तू इन फ्रंट ऑफ कैमरा पूरा संभाल, मैं बिहाइंड द कैमरा संभालता, क्योंकि मेरा कोई रोल है नहीं इसके अंदर। तो क्या होता है कि अगर मैं इसमें एक्टिंग भी करने लग जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बहुत रायता फैल जाएगा, फिल्म कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि हमने वैसे भी 11 दिन के अंदर फिल्म बनाई है। मैंने इसीलिए ना सारे एक्टर्स जो मेरे फ्रेंड्स लोग थे उनको मैंने बोला कि सबकी वर्कशॉप होगी। मेरी वाइफ भी इसके अंदर है, तो उसके साथ भी मैंने सबके साथ वर्कशॉप की थी और मैं 4-5 दिन वर्कशॉप की थी हम लोग। मैंने कहा था कि देखो एग्जैक्टली यही चीज जो मुझे चाहिए मैं यहाँ बता देता हूँ, वहां पर बस दिन कम होंगे, आप लोग को मैं वहां एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि कभी सन जाएगा, कभी कुछ होगा। तो अगर आप वहां पर नहीं कर पाए तो मैं जो करके दिखाऊंगा आपको एग्जैक्टली वही कॉपी करके दिखाऊंगा। तो कहते हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती थी कि वो सब एक्टर थे, मैं भी एक्टर था, ये भी एक्टर था, तो शूट पे कोई सीरियसली नहीं लेता था मुझे। एक दो थे एक्टर वो सीरियसली नहीं लेते थे, वो कहता चल बड़ा डायरेक्टर बनने आया है। उनको लगा था कि तू तो वहां जाके डायरेक्टर बन जाता है, दे यूज्ड टू से लाइक दिस। तो मैंने उन पे चिल्लाया, मैं कहा बॉस यार मैं डायरेक्टर हूँ, तो अगर मेरा नहीं सुनोगे फिल्म वो नहीं बन के आ पाएगी जो मैं सबको सुना रहा हूँ। तो वो उन्होंने बोला बड़ा बन रहा है, लेकिन वही जो बोल रहे थे। तो हमने जब स्क्रीनिंग की इंपा में, तो आई फील वेरी ऑनर्ड इन सेइंग दिस कि वही लड़का जो बोल रहा था वो मुझे बोला कि यार अमित मैं फिल्म देख के रोया हूँ। मतलब उसको लिटरली लगा कि ये उसको लग रहा था शायद हम लोग ना कोई एक और शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं।
और मैं और प्रियंक इससे से सीरियसली थे कि भाई इन फ्रंट ऑफ कैमरा तुम संभालो, बिहाइंड द कैमरा मैं संभालता हूँ। और हमारे पास कोई डायरेक्टर था नहीं, उसको किसी को हायर नहीं कर सकते थे, स्टोरी मैंने लिखी थी। अब क्योंकि स्टोरी मुझे नजर आती थी, मुझे राघव काकोली साइकिल पे जाते हुए नजर आते थे, बाप बेटी का बॉन्डिंग नजर आता था, मुझे उनकी सारी केमिस्ट्री नजर आती थी। और जब इतना नजर आ रहा है तो फिर मैं वही क्रिएट करने की कोशिश करता था इतना कम से कम। इनफैक्ट डीओपी को भी मैं एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं था। डीओपी को मैं बोलता था कि इसका आपको एक शॉट दो, तो वो जो शॉट बोलता था मेरे को पसंद नहीं आता था, तो मैं पहले जाके डीओपी को कैमरे से शूट करके बोलता था यही लेने का, क्योंकि वी डोंट हैव टाइम। तो इस तरह से कैसे भी करके हमने मैनेज किया। वहां पर बहुत सारे एक्टर्स जो नहीं कर पाते, टाइम कम था, तो मैं उनको लिटरली दिखाता करके कि बॉस अब मैं करके दिखा रहा हूँ, मुझे बस आप ये करके दे दो। ऐसे कर करके हमने कंप्लीट की। तो शुरू में वो देवर ऑफेंडेड, लेकिन जब फिल्म बनकर आई तो उनको लगा नहीं ये सही बोल रहा था। और मैं खुद भी ये रियलाइज करता हूँ एज एन एक्टर, अगर आप डायरेक्टर की नहीं सुनोगे तो वो वैसी फिल्म बना नहीं पाएगा जैसे वो बोल रहे थे। ये मैंने ऐसे इस पोजीशन में आके समझा मैंने इस बात, इसलिए डायरेक्टर का एक्टर होना चाहिए। Absolutely. So, I think 11 दिन में आपने पूरी फिल्म विदाउट प्रॉपर इस तरह से बहुत ही तकलीफ में, डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ थिंग व्हिच यू हैड टू फेस, व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड दैट। हाँ सुदीप्ता जी आप कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं, I actually wanted to ask one thing because film is a total journey. So we were discussing about the making, all the struggle and all the fun, and तो end में जब ये बन के like when you got your baby in hand, and then comes the most important part that you have to reach out to people, right? तो लोगों तक पहुंचाने के लिए ये जो कहाँ पे क्या रिलीज करना है, कहाँ पे पहुंचना है, कैसे ये बात आगे बढ़ानी है ताकि वो कनेक्ट बने। क्योंकि जो कुछ लोग हैं हमारे जैसे पागल लोग हैं, वो तो सब कुछ देख लेते हैं और वी गेट कनेक्टेड इमोशनली, बट देन एंड ऑफ द डे इट इज ऑल्सो अ बिजनेस वेयर मनी हैज बीन इन्वेस्टेड अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द हार्ड वर्क एंड ऑल दैट। तो उसके बारे में क्या सोचा है आपने, या फिर क्या सोचने वाले हैं, या फिर कहाँ पे रिलीज किया हुआ है, कहाँ पे करने का प्लान है? So like basically what is your plan on this? Because as I said, it's a total journey. After the making comes, no matter how good something is or no matter how sincerely we are doing something, हमें वो मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ बोल के बता के हम वो नहीं मैसेज पहुंचा पाएंगे किसी के पास। तो क्या सोचा है आपने, कहाँ जाके आपने रिलीज किया है या करने का सोच रहे हैं, या फिर ऑल इंडिया में या फिर रीजनली, लाइक व्हाट इज, बिकॉज द थीम दैट यू हैव मेड इज समथिंग वेरी नेशनल, आई कैन से। अगर थीमेटिकली देखा जाए सो दिस इज समथिंग बियॉन्ड नेशन, बिकॉज हम सबके दिल में दिमाग में एक विश्वास नाम का चीज होता है, चाहे हम भगवान को माने नहीं माने, लेकिन देयर इज सम सुपर पावर, सो वी ऑल कनेक्ट विद दैट। तो फिर हाउ हैव यू थॉट ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल? एक्चुअली अभी तक तो ये हम फेस्टिवल्स में ही घुमा रहे थे, अयोध्या में, शिफ्ट में, नेशनल में। इनफैक्ट नेशनल का भी एक अच्छा किस्सा हुआ कि नेशनल हमारी फिल्म सिनेफोर्ट में दिखाई गई थी, हमारी फिल्म का कुछ हुआ नहीं था। बट मेरे पास कुछ 3 महीने बाद एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे किसी का कि आई हैव सीन योर फिल्म इन सिनेफोर्ट एज अ पार्ट ऑफ जूरी and I want to see your film again, and this time I want to see this film with one of my filmmaker friend. So can I have the screener? तो मैंने उनको स्क्रीनर भेजा, उन्होंने देखी, they liked me, उन्होंने मुझे बुलाया लंच पे, उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट कॉन्सर्ट बना रहे हो। तो मुझे ये समझ में आया कि देखिए हॉल में तो इस तरह की फिल्म की कमर्शियल वैल्यू नहीं है अभी, और हमने बनाई भी फेस्टिवल के लिए थी। तो पहले तो जब फेस्टिवल में इस तरह का रेस्पॉन्स जब लोगों से आता है और लोग कनेक्ट करते हैं, तो अभी तक हमारी जर्नी फेस्टिवल्स में घुमाने की रही है, आगे भी इसको घुमाते रहेंगे कुछ टाइम तक। और इन द मीन टाइम हम लोग इसको ओटीटी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से। वी आर ट्राइंग टू रीच आउट पीपल who have good position in OTT and those who understand film and at the same time they understand the business. तो उन लोगों से बातचीत अभी भी चल रही है और अभी भी कुछ फाइनलाइज नहीं है, लेकिन कुछ खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है। वी आर स्टिल इन द प्रोसेस, सो वो प्रोसेस चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि इसको ओटीटी में रिलीज करने की, हॉल में रिलीज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो हमारा मकसद है लोगों तक पहुंचाना।
कौन से फिल्म फेस्टिवल्स में आपने अभी तक अप्रोच किए हमने हैं या फिर मतलब अयोध्या में भेजी थी, धर्मशाला में भेजी थी, पाइपलाइन में? अभी तो हम लोग ने थोड़ा सा ब्रेक लिया बिकॉज वी आर जस्ट थिंकिंग ओवर, ऐसा मेरा ही आइडिया था और अभी तक हम लोग ने जस्ट उनके फिल्म में बात की है। मुझे एक इशू ये लग रहा था कि हॉल में रिलीज करोगे उसके बाद ओटीटी वाले इसको कंसीडर करेंगे, व्हिच इज अ वेरी ट्रू फैक्ट, क्योंकि वो लोग अभी उन फिल्मों पे ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जो हॉल में रिलीज हो गई। अब हॉल में इस तरह की फिल्म रिलीज करने का आजकल वो नहीं है, मतलब कोई nobody will come forward and take responsibility this kind of film. They will appreciate but they will not take the responsibility. So हम लोग ये सोच रहे थे कि मेरा आइडिया था ये कि क्यों ना इसको हम 5 एपिसोड्स में डिवाइड कर लें, क्योंकि जिस तरह की फिल्म पंचायत आई, गुल्लक आई, लोगों का और एक्सपेरिमेंट वाला हो चुका है। अगर हम इसको 5 एपिसोड में डेवलप कर लें, इसको एपिसोड के हिसाब से मोल्ड करें, इसका बिगनिंग एंडिंग और पूरा ग्राफ को हिसाब से फिर से रीशेप करें, जिससे कहानी का स्पाइन ना जाए लेकिन लोगों को ये बात पहुंच जाए लोगों तक, तो शायद हमें हॉल में रिलीज करने की कॉन्फिडेंस से बचेंगे। दूसरा, हम ओटीटी में ले जाएंगे तो ये पंचायत और गुल्लक जैसे वेब सीरीज जो है उन्होंने हमारा काम काफी इजी कर दिया है। शायद लोगों हम कन्विंस कर पाए, शायद उसी बैकग्राउंड की फिल्म को देखकर वो बोले कि हाँ इस तरह की चीजें चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है, तो हो सकता है वो चीज निकल जाए। तो दिस इज आवर राइट नाउ द स्ट्रेटेजी। बाकी पाइपलाइन में तो हम लोग बात बहुत लोगों से कर रहे हैं और सब लोगों से क्या होता है कि बात, अगर आप तो जानती होंगे कि यहाँ पर बातें ऐसी होती है कि चल रही है रुके, हो रही है नहीं हो रही है, आपको डेफिनेटली नहीं बोल सकते। पर आइडिया हमारा यही है, मुझे ये समझ में आया कि हॉल में रिलीज नहीं होगी तो ओटीटी ऐसे फिल्म कंसीडर नहीं करेगी, और अगर हम इसको 5 एपिसोड में कन्वर्ट कर दें तो शायद पंचायत हमारा भला करके इसको एक रास्ता जो बना के उस रास्ते पे जाके अगर ओटीटी में चले जाए तो एटलीस्ट मेरा भी पॉइंट है कि लोगों तक अगर एक बार पहुंच जाए, लोग इसको देखना शुरू कर दें, कैसे भी, चाहे वेब सीरीज फॉर्म में देखो चाहे फिल्म के फॉर्म में देखो। अगर हमारी बात पहुंच रही है और उससे हमारा रास्ता आगे बनता है तो वी वुड प्रेफर टू गो दैट वे। तो ये एक और चैलेंज है मेरे लिए कि मैं इसको बैठ के 5 एपिसोड में कन्वर्ट कैसे करूं, कैसे इसको देखूं और हाउ, क्योंकि वही एक रास्ता है। अदरवाइज हॉल में अगर रिलीज करोगे तो एक तो बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा रिकवरी की कोई वो पॉइंट नहीं है, सब्सिडी के लिए भी आपके पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं कि इतने स्क्रीन्स में जाना चाहिए। सो ऑल टुगेदर इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर अस रिलीजिंग इन अ हॉल। तो Why I asked you the question, why I asked the question, there is a reason, because क्योंकि ये जो शो है नेचुरली लोगों तक पहुंच रहा है तो सबको लगता है कि क्या बात है, पैसे है, फिल्म बना डाला, प्रेजेंट कर दिया। सो आई वांटेड पीपल टू बी अवेयर दैट इसके पीछे भी बहुत मेहनत, बहुत थॉट प्रोसेस, बहुत सारे चैलेंजेस है। Because see, when we like Anshuman or myself or so many other media faculties, we take sessions. So we often tell them कि practically करो, समझो. So Elisha, now you can see in the end product, and filmmaking can never actually be learned or taught inside a classroom unless you're doing that, right? Because obviously you have taken up already a very big challenge. Your entire team, they have taken up a very big challenge कि आप लोगों ने ये साथ में मिलके बनाए हैं, इतना अच्छा काम है। जरूरी ये नहीं है कि आज कितने जन देख रहे हैं, जरूरी ये है कि ये जो जर्नी आपने शुरू किया है ये जर्नी आगे जारी रहने वाली। राइट अंशुमन? Am I right? Absolutely. So it's a lot of hard work, it's a lot of thought, and जो बोलते हैं ना कि creativity में like ऐसे ही बना डालते, वैसा नहीं है। It is absolutely a whole lot of logic comes into place, a whole lot of things are there in place. तो वो सारा मिला के वो सारे जितने भी डॉट्स है वो जोड़ते हैं तो बनता है वो एक फिल्म। So now at least I feel very happy to see one of my student has completed that one whole circle. एंड आई रियली होप कि आगे चल के ये टीम जो है ना, मतलब और भी बहुत सारा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट करेंगे। और डिफरेंट चीजें क्या है ना, इट टेक्स टाइम। जो नॉर्मल नेचुरल होते हैं ना वो लोगों तक, मतलब पीपल टेक इट लाइक हाँ चलो ठीक है। जो डिफरेंट होता है ना तो वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब पहुंचता है ना तो बहुत ऊपर तक जाता है ना अंशुमान? Yeah, absolutely. हाँ प्रियांक, या यू वांटेड टू से समथिंग? यस। तो ये फिल्म बनाने में तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे फिल्म बनाई, वहां जाके क्या क्या हुआ। एडिटिंग में बहुत लॉकडाउन लग गया था, जो सब एक्सप्लेन किया साधना जी ने। म्यूजिक, साउंड, मतलब इस पूरे फिल्म को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जितनी स्ट्रगल हुई, हमको लगा कि अब हमने जो सोचा था वो फिल्म बन गई है। मतलब जो मैसेज हम कहना चाहते, जो इमोशंस हम
पोर्ट्रे करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे, सब बन गया। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि ये अब तो जर्नी फिल्म की अभी स्टार्ट हुई है। हमने फेस्टिवल सोचे, जैसे अमित ने बोला, फेस्टिवल्स में भेजे, कुछ जगह पे सिलेक्शन हुआ, स्क्रीनिंग हुई, कुछ जगह अवार्ड्स मिले, बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिले, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, लेकिन स्ट्रगल अभी भी जारी है। मतलब इसको राइट ऑडियंस तक पहुंचाना, कैसे पहुंचाना कोई आइडिया नहीं है। हमने हर चीज ट्राई कर रहे हैं, हर किसी से हेल्प ले रहे हैं। इस माध्यम से मैं सबको, जो ये देख रहा है या पहुंच रहा है ये इंटरव्यू, हम बोलना चाहते हैं कि जर्नी अभी भी चालू है। अगर कहीं ये पहुंच सके आपके द्वारा तो प्लीज, मतलब आपके सजेशंस वेलकम है, आपके आइडियाज वेलकम है। इसको कोई सही जगह पे पहुंचना, क्योंकि ये जो इमोशंस, जो मैसेज है, अभी तक हमारे और जिन लोगों ने देखा ना, उनके पास ही है। ये जब तक ऑडियंस के लिए बनाया, ऑडियंस के लिए नहीं पहुंचेगा तो मैसेज नहीं है। ये जो इमोशंस है, इमोशंस नहीं है। मतलब ये इतना हार्ट मेरा, मतलब इतना मुझे दुख होता है कि ये सब मेहनत के बाद अभी जो हम मेहनत कर रहे हैं ना, वो अभी भी थोड़ी वेग है, पता है। फेस्टिवल्स में हम अवार्ड्स जीत चुके हैं। जैसा अमित ने बोला, हमको सेंसर बोर्ड वालों ने, जो हमको जानते नहीं है, वो हजारों फिल्में देखते हैं, इतना अच्छा फीडबैक मिला। हमने जहां स्क्रीनिंग की, जहां फेस्टिवल्स में गए, मतलब इतना अच्छा फीडबैक के बावजूद हम अभी भी वो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं जितना मतलब करना, आई डोंट नो, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसको पहुंचाने के लिए। अभी भी वो स्ट्रगल्स जारी है। मतलब इसको हम, जैसा अमित कह रहा है कि हम अभी क्या है, हम इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दे। मतलब एक आयरनी देखो, एक फिल्म को हमको रिलीज करने के लिए वेब सीरीज का भी थॉट हमको लाना पड़ रहा है, क्योंकि ओटीटी पे अभी बोला गया है हमको, जो मैंने जिन लोगों को कांटेक्ट किया था, कि अगर रिलीज नहीं हो रही है थिएट्रिकल तो हम ओटीटी पे नहीं डाल सकते। तो हमको रिलीज करने के लिए अब एपिसोड बनाने का हम एक थॉट आया है। मतलब अभी एपिसोड बनाना इट्स ऑल ओवर नई स्ट्रगल है, नई एडिटिंग, नए एपिसोड्स, इट्स अ न्यू प्रोजेक्ट। तो क्योंकि मेरे ख्याल से आप यदि वो करते हैं ना, जस्ट अ सजेशन, वो यदि करते हैं तो फिल्म की जो एसेंस है ना, वो निकल जाएगी। और सबसे थोड़ा सा सोच के कीजिएगा, बिकॉज व्हेन यू विल कम बैक एंड मीट देम, यही जो लोग आपको आज कह रहे हैं कि आप इसको एपिसोडिक करें, जब आप कल दूसरी एक फिल्म लेके आप जब जाएंगे ना, वो कहेंगे कि आपने फिल्म कहाँ पे किया है। आप समझ रहे हैं? वही आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी तो ये पहली फिल्म है, आपके पहले का कुछ है नहीं, थिएट्रिकल रिलीज नहीं है। सो इट्स लाइक दैट कि आपको क्या करना है, दैट डिसीजन इज समथिंग व्हिच आई थिंक यू ऑल, आई एम आउट ऑफ नोवेयर, आई एम जस्ट गिविंग यू बिकॉज आई हैव फेस्ड ऑल दोस थिंग्स. That's the thing where I am just giving my input there. Okay, coming back to Alisha. Alisha, आपसे कुछ पूछा नहीं मैं, आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा? Because you handle lot of things in the film, right? And syndication भी आप देख रहे हैं, जैसे आपने शुरुआत में कहा, शुरू से लेके अंत तक आप कहीं पे भी नहीं थे, लेकिन सभी जगह पे थे मेरे ख्याल से, राइट? सो आपने शैडोज में काम किया है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू आर एवरीवेयर इन द फिल्म. सो शेयर योर एक्सपीरियंस अ बिट, बिकॉज व्हाई आई एम आस्किंग यू Alisha, बिकॉज यू आर एन इंस्पिरेशन टू द स्टूडेंट्स एक्चुअली. क्योंकि मैंने आपसे ये इंटरव्यू इसीलिए करने के लिए ये किया, क्योंकि मुझे लगा कि दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि एक स्टूडेंट हु ग्रेजुएटेड फ्रॉम अ बीएमएम और कुछ सालों के बाद एक फिल्म पे वो काम करना, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है. You can inspire a lot of students in that way. Yeah, you are on mute. If you can unmute yourself. Yes. So first of all, thank you for this. And definitely जब so I want to क्या बोल सकते हैं, I want to say about my journey a bit. जैसे when I was so much into कि मुझे फिल्म मेकर बनना है, फिल्म बनाना है, and I used to discuss this with my mother because हमारा थिएटर का बैकग्राउंड ऑलरेडी है.
एक्टिंग मैं ऑलरेडी कर रही थी, तो एज एन एक्टर थिएटर एक्टिंग कर रही थी, मम्मा से ही सीखा है मैंने। सो मुझे शुरू से था कि मेरा मेरा एक विजन है, मुझे अपने विजन को सोसाइटी को देना है, मतलब अ गुड विजन। सोसाइटी में अगर मैं कुछ गुड इनपुट डाल सकती हूँ तो उसका सबसे बेस्ट मीडियम है फिल्म मेकिंग, बिकॉज फिल्म एक ऐसी चीज है जो बिना बोले भी लोगों को समझ में आती है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपका कोई भाषा का जानना जरूरी है, या आपका you can just see and learn, and you can just see and feed your thoughts to the audience. So with that motive मैंने सोचा मुझे फिल्म मेकिंग करनी है, तो फिल्म मेकिंग में मैंने सोचा कि मैं सब जगह गई, एडी का मतलब बिफोर माय एजुकेशन मैंने सोचा कि मैं ना जाके सीधा इंडस्ट्री में जाके काम करना शुरू करती हूँ। तो सबकी तरह सब यही सोचते हैं इनिशियली। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन से, एंड मैं चली गई काम पे, सेट्स पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो चल रहे हैं, काफी अच्छे हैं। बट देन मैंने देखा ये एडी बन जाती हूँ, और एडी बनने के बाद भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है, बिकॉज यू आर वेरी न्यू, एंड ये ले आओ, वो ले आओ, ये कर दो, एक्ट्रेस को ले आओ, सो ये सब चीजें करने तो मैं नहीं आई थी। मुझे ऐसा रियलाइज होता है 15-20 दिन बाद ही कि आई एम नॉट हियर फॉर दिस। सो देन आई थॉट कि मैं इसमें एजुकेट होती हूँ, क्योंकि अगर मुझे एजुकेशन मिलेगा तो मुझे टेक्निकलिटी हर चीज को समझने में बहुत ईजी हो जाएगा, एंड देन आई कैन डू समथिंग विद माई ओन विजन। सो मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर करा, एंड दे बिलीव्ड इन मी। सो देन फिर मैंने मतलब प्रॉपरली इसकी एजुकेशन ली, फॉर्मल एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा कोर्स। सो देन उसके बाद जब हम फिल्म मेकिंग पढ़ते हैं ना, तो हम लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं कि बस अब तो फिल्म मेकिंग का कोर्स खत्म हो गया, अब तो हम फिल्म मेकर है, तो ऐसा लगता है कि फिल्म बनानी है। तो दैट टाइम मतलब उसके मतलब जब मैंने अपनी एजुकेशन कर ली थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी फिल्म बनानी है, तो दैट टाइम अमित सर से हम लोग मिले थे। तो उसके बाद फिर आपको पूरी फिल्म की जर्नी पता है, सबकी जर्नी पता है, पर देन जब जैसे जैसे ये फिल्म इवॉल्व हुई, वैसे वैसे मैं एज अ मेकर इवॉल्व हुई। तो जैसे जैसे फिल्म ग्रो कर रही थी, मैं ग्रो कर रही थी अपने नॉलेज से, एजुकेशन से, टच वुड टेक्निकली मैं काफी, मुझे इजीली चीजें समझ में आ जाती है, तो मुझे टेक्निकल टेक्निक्स और ये सब चीजों को समझने में इशू नहीं होता है। आज की जनरेशन वैसे भी मतलब टेक्निक हम लोगों को समझ में आ जाती है कि ठीक है, एक बार देख लिया समझ गए। तो उसको लेके, उसको चीजों को करके, तो व्हाट मतलब मैंने इनिशियली कैसे किया कि मैंने कुछ सीखा अगर, तो क्योंकि मैं एज एन एक्टर भी हूं, तो मैं उस चीज को ग्रास्प कर लेती थी, और मुझे पता नहीं है मैं उसको एक्ट करती थी कि उन्होंने कैसे किया था। तो आई ट्राई टू एक्ट लाइक, तो मुझे समझ में आ जाता था कि लाइक इफ सर एडिट सिखा रहे हैं, तो मेरा ध्यान सिर्फ उनके मोशंस, उनके मूवमेंट्स, उनके एक्सप्रेशंस पर रहता था। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम डूइंग दिस, so आई एम कॉपीइंग हिम व्हाट ही डिड। So that's how I learned all the things. All the things became easy for me. तो then thereafter मैंने अपने पेरेंट्स से शेयर किया कि फिल्म बनानी है, तो हमें अमित सर मिले, तो हमने मिलके ये एक फिल्म शुरू करी, काकोली के राम। और ये फिल्म बनाने के बाद इसमें मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी थी उनके साथ, और हम लोगों ने साथ में मिलके ये फिल्म एडिट भी करी है। तो ये सब पूरी प्रोसेस के बाद आई एम हियर कि चलो अब फिल्म बना ली, लाइफ में एक चीज कर लिया, बिकॉज मेरा टारगेट था कि 25 की एज के अंडर मुझे एक फिल्म बनानी है। हाँ, उस वक्त मेरे माइंड में ये क्लियर नहीं था कि मुझे डायरेक्ट करना है कि मुझे क्या करना है, बट मेरे माइंड में ये क्लियर था, द मोमेंट आई टर्न 25 आई नीड टू मेक अ फिल्म। तो व्हेन आई वाज 25 समवेयर अराउंड, तो ये फिल्म बन रही थी। तो बता दिया? नहीं सर, अभी वो नहीं बताया। बट एक मेरा टारगेट था लाइफ में कि ये एज तक मुझे ये करना है। हम सोचते हैं ना हर 5 साल में हमें क्या करना है लाइफ में। वेरी गुड। तो आई डिड दिस। देन हम लोग ने मिलके जब फिल्म बनाई, तो फिल्म बनाने के बाद ऐसा लगा हमने जंग जीत ली है कि बस अब तो काम हो गया, लाइफ में सबसे बेस्ट काम करा है। बट उसके बाद जब एक्चुअली में रियलाइज हुआ कि हमने पहले जब फिल्म बनाई थी, तो सबने सोचा था हम एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं,
हमारे पास एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है जिसमें एक बहुत क्यूट सा और बहुत अच्छा मैसेज है जो सबको, जो हमको इंस्पायर कर रहा है सिर्फ सुनने में, तो जब लोग उसको देख पाएंगे तो लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा। तो फिर जब हमने फिल्म बना ली तो हमें लगा हो गया काम, बट जब हमने देखा कि नहीं, फेस्टिवल में ये ऐसा नहीं होता है जैसे हम उधर बैठ के सोचते हैं कि हमारे पास स्क्रिप्ट है, हम फिल्म बनाएंगे, हम फेस्टिवल में देंगे हमारी फिल्म लोगों तक पहुंच जाएगी। जब हम इस साइड पर आते हैं, ऑन दी अदर साइड बनने के बाद हम भी मैच्योर होते हैं एज अ मेकर, और हमें समझ में आता है कि नहीं, फिल्म बनाना एक जर्नी थी, एक लेडर हमने पार किया है, अभी हमारे पास और लेडर है बहुत सारी। तो फेस्टिवल में फिर हम लोग गए, फिर फेस्टिवल में जब हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो बाय रिस्पॉन्स में ये नहीं कहूंगी हमेशा कि आपको अवार्ड मिल गया तो आपका रिस्पॉन्स है, डेफिनेटली हमें अवार्ड्स भी मिले हैं, पर मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि रिस्पॉन्स मतलब अगर आपने आपकी फिल्म चलाई है और उस फिल्म में बैठे हुए अगर एक भी इंसान की लाइफ पर अगर वो फिल्म प्रभाव डालती है, या वो इंसान आपको कहता है कि मैं इससे बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ अपने घर इस फिल्म से, तो एज अ मेकर मुझे लगता है, एज अ टीम, एज अ मेकर आप सक्सेसफुल हो अगर वो एक लाइफ को भी आप अफेक्ट कर रहे हो अपनी फिल्म से, विच मीन्स कि आपका फिल्म बनाने का मोटिव कंप्लीट हो गया, जिस मोटिव से आपने फिल्म बनाई थी। तो मैं सक्सेस को ऐसे नहीं देखती हूँ कि यार हमने फिल्म बना ली, हमारी तो अभी कहीं आ ही नहीं रही है, या हम लोग फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं, तो मैं ऐसे देखती हूँ कि हमें क्या रिस्पॉन्स मिला है। It's a part No, of journey. Elisha, yeah, this is a part of your journey, and your life has just started, and your professional life has also started, and you have been through a very fantastic journey because of all these people around you who had been a great support, right? Priyanji, if you can share your future projects and all, कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि you are a household, we always see you in mutual funds and also. अभी म्यूचुअल फंड थोड़ा ठंडा हो गया है, रुपए क्रेडिट कार्ड थोड़ा हॉट हो गया, हॉट प्रॉपर्टी है। Yeah, I know that. तो बस एड्स बेसिकली जब मैंने स्टार्ट किया तब से एड्स तो कर ही रहा हूँ मैं, तो वो साइड में चलता है, लेकिन एज अ करियर अभी एक फिल्म की है, वो लॉन्च होगी, 2 वेब सीरीज है, और उनका टाइटल मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट अपकमिंग, और एक डेली सोप मैं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, एक सीरियल है वो चल रहा है मेरा, और ये काकोली के राम के बाद मतलब हमने जो टीम बनाई थी वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाई थी, ये टीम जो हमारी है, तो अमित को, अगेन राइटर डायरेक्टर अमित है, तो मैंने अमित को बोला, मेरे पास भी मतलब मैं भी सोचता रहता हूँ साइड में, लेकिन अमित को मैंने बोला कि भाई इट्स टाइम टू मेक अ न्यू फिल्म, ये अपनी नसीब से और बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अच्छी जगह पे पहुंचेगी, लेकिन अभी दूसरे प्रोजेक्ट का काम मतलब शुरू कर देना चाहिए, तो उसने शायद कर दिया है। तो ये जो हमारी टीम है, क्योंकि बहुत मेहनत से बनती है टीम, और फॉर्चुनेटली साधना जी, इलेशा, अमित और मैं तो हुई, और हमारे जो टीम में है वो बहुत अच्छी टीम बन गई है ऑलरेडी। तो अभी जो इससे सीखा है, जो गलतियां की है, जो सीखा है, जो पॉजिटिव्स है, वो सब लेके हमको इसके एक लेडर अप जाना है, तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा फिर। वी होप कि आपके जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है बहुत जल्दी हमें दिखे, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, Priyank ji and Amit ji as well. Thank you so much for joining this platform. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you Amit. Thank you Lesha. It was nice to interact with you after a long time. It was nice. अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें भी बहुत अच्छा लगा। Okay Amit ji. It was very informal, so it was very good. जैसे हम बात कर रहे हैं अपने दिल की बात, क्योंकि नहीं तो हम ऐसे बोलते हाँ हमारी फिल्म की जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत हमने अच्छा किया, वैसा नहीं था। और आपसे बात करके आशा भी जगी है सर, कुछ आगे भी मतलब होगा अच्छा, अच्छा ही होता है।